Sarvodaya Tika on Vatsanupekha Granth is going on, and in this, the second Anupreksha, that is Ashranupeksha is going on. In Adhruvanupeksha, we see that all the material things, all the things that is relating to the body, all relationships, and all things in the universe that all are not everlasting. And in this Ashranupeksha, we see that these things cannot even give you the shelter. So this point was going on that where in Adhruvanupeksha we see that these all things, whether material or live things that are not everlasting, similarly they even cannot give you the shelter. And in this context, second chapter is going on, in which Acharya Shri had explained this fact by the way of Gatha number 8 to 13, for which we had seen the Patanika, and thereafter yesterday we see Gatha number 8. In Gatha number 8, Acharya Shri Kundukund Dev had written that all the medicines, all the doctors, all the elephants, horses, rathas, and all types of vidyas, they cannot give you the shelter at the time of death. Whatsoever your wealth is there, whatsoever the relations are there, whatsoever doctors are there, whatsoever safety precautions are there, whatsoever safety instruments are there, whatsoever jewels, whatsoever mantras, and all other things, your elephants, your horses, rathas, and these vidyas, these can give you the shelter only up to the time your lifespan is balanced. Once your lifespan is ended, nobody can give you the shelter. A soul left out of your body, and all these things remain there. But they cannot save your life, they cannot stop the soul to go out of the body, though they may be powerful, but they are powerless at the time of death. So these things we see, and in this context, in the Sarvodaya Tika, Acharya Shri Virag Sagarji Maharaj had explained all the words one by one, in which first of all Acharya Shri had see Tisu Loe, means in the all three worlds, that is Urdhulok, Madhyalok, and Adholok. So this thing Acharya Shri had explained, and thereafter Acharya Shri was explaining regarding Marana Samyami, means at the time of death. So this phase was going on at the time of death, that is Maran Samyami. So Acharya Shri had explained in this context that we have a small lifespan. Every creature in the world, whether he is a devil, whether he is a human being, whether he is an animal, whosoever, whether it is anarchy, the person living in the hell, they all have a lifespan that is fixed, and up to that time he live in the world. Thereafter he change his body. So up to the time that lifespan is pending, your body remains safe, and thereafter that is necessary to be going to change. And in this context, Acharya Shri will give the other examples of Padam Nandi Panchamishti that we will see today. बंधुओं, सर्वोदया टीका पर आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज दूसरी अनुप्रेक्षा, अशरण अनुप्रेक्षा की बात कर रहे हैं, जहां हमने पहली अनुप्रेक्षा अध्रुवानुप्रेक्षा में देखा था कि जितने भी भौतिक वस्तुएं हैं, जितने भी शरीर के संबंधी जन हैं, जितने भी शरीर से संबंधित जुड़ी हुई अवस्थाएं हैं, और यहाँ तक कि हमारा शरीर, ये सभी कैसे हैं? अनित्य हैं, अशाश्वत हैं, समाप्त होने वाले हैं। वहीं आचार्य श्री दूसरे अधिकार में अशरणानुपेक्षा के माध्यम से कह रहे हैं कि मृत्यु के समय ये कोई भी आपको मृत्यु से बचा नहीं सकते। पहले अधिकार में आचार्य जी ने कहा था कि ये सभी समाप्त होने वाले हैं, और दूसरे अधिकार में आचार्य जी कह रहे हैं कि ये स्वयं भी समाप्त होते हैं और आपको भी आपका अंत समय आने पर बचाने में सक्षम समर्थ नहीं है।
यहाँ पर आचार्य ऋषि ने गाथा नंबर 8 से 13 तक इस अधिकार में अनेक अनेक माध्यमों से इस बात को बतलाया है कि ये जितनी भी चीजें हैं ये सभी कोई भी इसमें शरण नहीं है, एकमात्र हमारी आत्मा ही शरण है। जिसके अंतर्गत पहली गाथा, इस अधिकार की पहली गाथा यानी गाथा नंबर 8 चल रही थी, जिसमें आचार्य ऋषि कह रहे हैं कि मणि, मंत्र, रक्षा के साधन, हाथी, घोड़े और रथ और जितनी भी विद्याएं हैं, तो ये सभी क्या हैं, कब तक हमारे लिए कार्यकारी हैं, जब तक हमारी आयु कर्म शेष है। आयु कर्म के समाप्त होते ही ये सब की सब रखी की रखी रह जाएंगी। व्यक्ति घिरा रहेगा डॉक्टरों के बीच में, वैद्यों के बीच में, हकीमों के बीच में। अनेक प्रकार के जांच इंस्ट्रूमेंट उसके लगे रहेंगे। कोई उसकी हार्ट बीट बता रहा है, कोई उसका बीपी चेक कर रहा है, कोई और भी प्रकार के शुगर का इंस्ट्रूमेंट है, कहीं और MRC वगैरह सभी हो रहे हैं, रिपोर्टें आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड है, ग्लूकोज चढ़ा हुआ है, खून की बोतल चढ़ी हुई है, पूरे नर्सेज, डॉक्टर्स वगैरह की पूरी टीम वहां पे उपस्थित है, बड़े बड़े मंत्रवादी भी उपस्थित हैं, सब कुछ रखा रह जाएगा। लेकिन ये आत्मा शरीर को छोड़कर पलायन कर जाएगी। सब देखते के देखते रह जाएंगे और कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। कितना भी बड़ा फेमस डॉक्टर हो, वर्ल्ड क्लास डॉक्टर हो, पूरे विश्व में जिसकी ख्याति है, ऐसा विश्व ख्याति प्राप्त डॉक्टर क्यों ना हो, बड़े से बड़ा मंत्रवादी क्यों ना हो, बड़े से बड़े कार्यों को संपन्न करने में क्यों ना वो सक्षम समर्थ हो, कि कैसी भी मणि हो, बड़ी से बड़ी औषधियां हो और शत्रु से बचाने वाले बड़े बड़े दुर्ग, हाथी, घोड़े, रथी, पैदल, बड़ी बड़ी सेनाएं, ये सभी भी बड़े बड़े चक्रवर्ती और यहाँ तक कि इंद्र और अहमेंद्र को भी नहीं बचा पाई। आज तक जो व्यक्ति ने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित ही है। आज तक कोई भी जीवित नहीं रह सका। और कब तक जीवित रहा? जब तक उसका आयु कर्म शेष है। उसके बाद एक श्वास भी वो अधिक बढ़ाने में उसमें सक्षम नहीं है। इतनी सारी चीजें मिलकर भी व्यक्ति की एक श्वास को भी नहीं बढ़ा सकती, एक श्वास को भी नहीं बढ़ा सकती। तो ये वास्तविकता में क्या है? ये अशरणानुपेक्षा यही कहती है कि संसार की जितनी वस्तुएं हैं, जितने व्यक्ति हैं, जितने बड़े बड़े ये सब लोग हैं, लेकिन आयु कर्म के ऊपर किसी का आज तक बस नहीं चला। विज्ञान ने इतनी सारी प्रोग्रेस कर ली, हर चीज की दवा निकाल ली, हर बीमारी का इलाज निकाल लिया, लेकिन आज तक 3 चीजों का इलाज वो नहीं निकाल पाई। कौन कौन सी? जन्म, जरा और मृत्यु। ये ऐसे महारोग हैं जो अनादिकाल से हमारे अंदर लगे हुए हैं। आज तक कोई भी डॉक्टर मृत्यु का उपचार नहीं कर सकता। आज तक कोई व्यक्ति बूढ़ा होने से नहीं बचा सकता, और आज तक कोई व्यक्ति दोबारा जन्म ना लेना पड़े ऐसी कोई औषधि नहीं बना सका। एक बार ये आत्मा शरीर को छोड़ देती है और दोबारा फिर जन्म लेती है। आप इस औदारिक शरीर को तो औषधियां दे सकते हैं, लेकिन जो कारमान शरीर है उसके लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र में कहते हैं अनादि संबंधे च, अनादि काल से उसका संबंध बना हुआ है। वो संबंध आज तक नहीं टूटा अपना, वो शरीर आज तक नहीं छूटा। वो शरीर जिस दिन छूट जाएगा तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे? सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे जाके। ये कारमान शरीर, ये एक ऐसा शरीर है जो कर्मों का लेखा जोखा पूरा उस कारमान शरीर के अंदर रहता है, और इसी के कारण व्यक्ति पुनः पुनः जन्म लेता है, पुनः पुनः दुखों को भोगता है, संसार में रहता है, अलग अलग रूपों में जन्म लेता है, एकमात्र इस कारमान शरीर के कारण। तो आचार्य जी यहाँ पर एक एक शब्द को लेके जहाँ व्याख्याएं कर रहे थे, पहले आचार्य जी ने कहा तीसु लोए, यानी तीनों लोकों में, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। तो हमें पता है कि ये जो भूमंडल है, ये जो 3 लोक का जो वो है, इसमें 3 भागों में बंटा हुआ है। जहां तक 6 द्रव्य पाए जाते हैं वो क्या है? लोकाकाश है। और वो 3 भागों में ऊर्ध्व, मध्य और अधोलोक के दृष्टिकोण से 3 प्रकार का है, और उसके बाहर सारा अलोकाकाश है। तो इसके बाद आचार्य जी ने दूसरा जो एक्सप्लेन किया वो है मरण संयमी। मरण के समय में, मृत्यु के समय आने पर
तो ये मृत्यु समय कब आता है उस विषय में आचार्य जी बता रहे थे कि ये आयु कर्म के कारण व्यक्ति जो है एक जीवन की स्थिति को लेके आता है। दो प्रकार की आयु के विषय में कल हमने चर्चा की थी। कौन कौन सी बताओ आंटी जी, एनक वाली। हाँ आप ऐसे पूछ रहे, पीछे वाले बीच में आप ऐसे बताओ, पीछे वाली आंटी जी। हाँ कल हमने दो प्रकार की चर्चा की थी आयु। कौन कौन सी आयु थी? एक भुज्यमान आयु और एक वर्तमान में चल रही है, वो तो भुज्यमान आयु है, और एक बद्धमान आयु जो भविष्य में हमें बंध चुकी है, जिसके लिए हमने बताया था कि आयु कर्म मात्र एक बार बनता है, बाकी 7 कर्म एक साथ हमेशा बनते हैं। तो बंधापकर्ष काल की भी कल हमने चर्चा की थी कि 8 बंधापकर्ष काल आते हैं और उनमें आयु का बंध होता है, और जो आयु एक बार बंध जाती है वो कहलाती है बध्यमान आयु। उसमें आबादा डल जाती है, आबादा डल जाती है कि इतने समय के बाद आपके लिए दूसरी आयु प्राप्त होगी, तो वो आयु कहलाती है बध्यमान आयु, और वो एक स्थिति को लिए होती है। आपकी मनुष्य आयु का बंद हुआ तो 80 वर्ष की अगर उसमें स्थिति है तो वो 80 वर्ष तक ही के लिए आपको मिली है, और आपके आयु के निषेक एक एक करके कम होते जाते हैं। 80 वर्ष के अंदर में पूरे निषेक झड़ जाते हैं। यदि देव आयु बंधी है 5 सागर की स्थिति को लेकर है तो 5 सागर में वो स्थिति समाप्त हो जाती है। तो दो प्रकार की आयु मैक्सिमम एक समय में रह सकती है सत्ता में, एक बध्यमान आयु और एक भुज्यमान आयु। जो आप भोग रहे हैं वो भुज्यमान आयु है, और जो बंधी है इसके समाप्त होने पर वो शुरू होगी वो है बध्यमान आयु। तो जितनी उसकी स्थिति है, जितनी स्थिति को लेकर वो बंधी है वो कहलाती है आपकी आयु। उतने ही समय तक व्यक्ति उसमें जीवित रहता है, उस शरीर में रहता है, उसके बाद उसे उस शरीर को छोड़ना पड़ता है। तो इस विषय में आचार्य जी ने कल धवला पुस्तक 1 खंड 1 भाग 1 और सूत्र नंबर 83 के विषय में भी बताया था, और भगवती आराधना श्लोक नंबर 25 में विजयोदया टीका के विषय में भी इस विषय में कहा था। और आचार्य जी ने उसमें कहा था कि उस समय से ना तो व्यक्ति उससे पहले मरता है ना ही उससे बाद मरता है, यानी वो जो क्षण निश्चित है, वो जो समय, जितनी घड़ियां आप लेके आए हैं उनमें से एक घड़ी भी, एक समय भी ना तो कोई घटा सकता है ना ही बढ़ा सकता है। और इसी विषय में आचार्य जी आगे पदम नंदी पंचविंशतिका में भी इस विषय में क्या कहा है वही आज इस विषय में आगे अपन पढ़ रहे हैं। उक्तम च पदम नंदी पंचविंशतिकायाम, तो पदम नंदी पंचविंशतिका नाम के जो ग्रंथ है इसमें आचार्य पदम नंदी महाराज अध्याय 3 और श्लोक नंबर 18 के माध्यम से कह रहे हैं, यैव सब कृत कर्म कृत काल कलत्र जंतु तत्रैव याति मरणं न पुरो न पश्चात मूढ़ा तथापि हि मृते स्वजने विधाय शोकं परं प्रचुर दुःख भुजो भवन्ति। यैव स्वकर्म कृत काल कलात्र जंतु, इस संसार में स्वकृत कर्म, कौन सा कर्म? अपने द्वारा ही किया हुआ कर्म, कोई दूसरे के नहीं है। अपने किए हुए कर्मों के कारण काल कलत्र जंतु, तो व्यक्ति जो है, जो समय काल जो है नियत किया गया है उसमें ये जंतु यानी ये प्राणी तत्रैव याति मृत्युम, उसमें ही मृत्यु को प्राप्त होता है। जो उसने अपना आयु के निषेक बांधे हैं, उसके आयु कर्म जितने उसने बांधे हैं स्वयं ही बांधे हैं, और उसी में वो मृत्यु को प्राप्त होता है। ना पूर्व ना पश्चात, ना उससे पहले होता है और ना पश्चात यानी उसके बाद होता है। जितना समय आयु स्थिति जितनी वो लेके आया है उतने मात्र में ही वो मृत्यु को प्राप्त होता है। मूढ़ास्तथापि ही मृते स्वजने विधाये शोकम परम प्रचुर दुख भजो भवन्ति। लेकिन जो मूढ़ व्यक्ति हैं, जो मूढ़ व्यक्ति हैं, अज्ञानी व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं? तथापि, उसके बावजूद भी, पता है सभी को, सब जानते हैं कि जो व्यक्ति जितनी आयु कर्म को लेकर आया उसमें ही वो मृत्यु को प्राप्त होगा, नियम से प्राप्त होगा, उससे कम भी नहीं होगा, उससे ज्यादा भी नहीं होगा, बिल्कुल उसी नियत समय पर ही मृत्यु को प्राप्त होगा। उसके बाद भी क्या करते हैं? मृते स्वजने विधाय शोकम परम। कोई भी संबंधी के मृत्यु हो जाने पे आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? शोक करते हैं ना सभी लोग। काहे को कर रहे हैं? क्योंकि मूढ़ हैं। आपने किसी मुनि महाराज को अगर उनके गृहस्थ अवस्था के कोई पूरे हो जाएं तो शोक करते देखा क्या? क्यों? क्योंकि उन्होंने उसका मोह का त्याग किया है।
लेकिन हम लोग जो गृहस्थी में फंसे हुए हैं, परिवार के लोगों से इतना मोह रखे हुए हैं, और उस मोह के कारण क्या होते हैं, शोक को प्राप्त हो जाते हैं। और शोक को प्राप्त होते हैं तो क्या होता है, अपने ही कर्म का नया बंद करते हैं। जानते बूझते समझते फिर भी अपन क्या करते हैं, शोक सभा, व्यक्ति बाकायदा आमंत्रण कार्ड बनाता है, शोक सभा, मिलकर सभी शोक व्यक्त करते हैं। किसी अच्छे कार्य के लिए आप कोई सभा का आयोजन करें, अच्छी बात है, लेकिन शोक किसका कारण है, असाता वेदनी कर्म का। किसका कारण है ये, असाता वेदनी कर्म का। दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेवना न्यातम प्रोभ्यस, क्या है, असाता वेदनी कर्म, सद्वेद्य से। सभी लोग पढ़ते हैं तत्वार्थ सूत्र 6 अध्याय का सूत्र। तो ये जो दुख है, शोक है, परितंबन, आक्रंदन आदि, ये सब क्या है, असाता वेदनी कर्म को। फिर आप कहते हैं कि हम दुखी, हम दुखी, हम परेशान। अरे आप खुद ही अपने लिए परेशानी का कारण ढूंढ रहे हैं। जिसमें मोह नहीं करना चाहिए उससे आप मोह कर रहे हैं, और मोह करने के बाद उसके जाने पे आप दुखी हो रहे हैं, और खुद तो दुखी हो रहे हैं, लोगों को आमंत्रित करके दुखी कर रहे हैं। अभी तो बहुत कम हो गया। पहले समय में कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो क्या करते थे, 7-7 दिन तक का शोक सभाएं चलती थी, और सामान्य रूप से नहीं चलती थी, बुरी तरह से रोते थे। कोई रोए ना तो उसको जबरदस्ती रुलाया जाता था। पता आप लोगों को, पुराने लोगों को तो पता होगा, नहीं पता आपके यहाँ परंपरा नहीं है ऐसी। कोई अगर जल्दी चला जाए, जल्दी का मतलब है कि आयु के निषेध तो उसके तो नहीं थे, लेकिन अगर कोई कम आयु लेके आया है, 25 साल 30 साल की उम्र में चला जाए ना जवान, तो विशेष शोक सभाओं का वहां पे आयोजन। एक वो होती है ना नाइन, ये जो बाल काटने वगैरह काम करता है, नाई, तो नाई के यहाँ से जो है एक नाइन बुलाई जाती थी उसके लिए विशेष रूप से, और वो जो है विशेष शोक सभा में जबरदस्ती सबको चिल्ला चिल्ला के रुलाती थी, हाथ छाती पीट पीट के रोते थे लोग, और कोई नहीं रोए तो उसको, और ऐसी ऐसी सभाओं का विशेष रूप से आयोजन होता था, जिसे स्यापा, जिसे यहाँ कहते हैं स्यापा, हमारे यहाँ पंजाबी में विशेष रूप से कहता है स्यापा। स्यापा यानी कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो विशेष शोक सभा इसके लिए बुलाई जाती थी, और 7-7 8-8 दिन तक वहां पे भोजन आदि नहीं बनता था, आसपास में भोजन की व्यवस्था वगैरह रहती थी, कोई भी वहां पे भोजन आदि करता भी नहीं था, और मात्र जो बाहर से आए हैं तो उनके लिए कच्चे भोजन की व्यवस्था रहती थी। आजकल तो सिस्टम ही दूसरे हो गए। आजकल तो शोक सभा का भी आयोजन कैसे होता है, जैसे आपकी बर्थडे पार्टी और कहीं विवाह के उत्सव का आयोजन होगा। खुद भी मेहमानों की तरह आओ, और जिनके यहाँ मृत्यु हुई है वो भी मेहमानों की तरह से जाएंगे। कोई एक धर्मशाला अथवा कोई जगह बुक कर लेंगे, वहां पे हलवाई बैठेगा, उसी तरह से भोजन बनेगा, जैसे आपका बाकी अच्छे उत्सव हो रहे हैं वैसे ही। तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले समय में व्यक्ति जाता था और वहां पर उसके दुख में भागीदार बनता था, लेकिन वहां पे भोजन नहीं करता था। अब जो बाहर से आया है तो मात्र थोड़ा बस ठीक है, पेट भरने के हिसाब से रूखा सूखा भोजन जो है उसके लिए, वो भी आस पड़ोस के लोग जो है वो उसके लिए व्यवस्था बनाते थे। तो इस तरह के 7-7 8-8 दिन तक लोग आते थे, दुख शोक प्रकट करते थे, खुद भी रोते थे, उसको भी रुलाते थे, बार बार उस व्यक्ति के विषय में चर्चाएं करके, पुरानी पुरानी बातों को याद कर करके और खूब रोते थे, छाती पीट पीट के रोते थे, जोर जोर के छाती पीट के। तो इस तरह की पहले शोक सभाओं का आयोजन हुआ करता था पुराने समय में। आजकल यदि भी इतना ज्यादा वो तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप लोग शोक सभाएं आयोजित करते हैं। शोक सभा बाकायदा आमंत्रण कार्ड निकलते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, उसमें शोक व्यक्त किया जाता है। श्रद्धांजलि सभाएं जिसमें उस व्यक्ति के विषय में 2 शब्द होते हैं। तो ये सब जो आयोजन हो रहे हैं, जिनका लक्ष्य क्या है, शोक, उस व्यक्ति के जाने पे शोक प्रकट करना। तो क्या ये परंपरा उचित है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से? लौकिक दृष्टिकोण से नहीं पूछ रहे, आध्यात्म क्या कहेगा कि क्या ये परंपरा होनी चाहिए। अब लौकिक दृष्टिकोण से तो ये परंपरा चल रही है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये परंपराएं बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि वो जो जाना था उसका तो निश्चित ही था जाना,
उसे तो कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन आपने उसमें शोक करके क्या किया, अपने असाता वेदनी कर्म को बंद कर लिया। उस समय भी आप दुखी हो रहे हैं और उस समय के दुखी होने के कारण और नए कर्म का बंद कर रहे हैं, जो फिर उदय में आएगा और फिर आपको दुखी ही करेगा, दुखी ही करेगा, सुख नहीं दे सकता। तो ऐसी जो शोक सभाएं होती थी, आचार्य जी कह रहे हैं मूढ़ा में सब क्या है, अज्ञानी है, ये अज्ञानियों के काम है सब। बहुत सारे लोग पहले कैसी कैसी परंपराएं, स्त्रियों के लिए, पतिव्रता स्त्रियों के लिए क्या थी पहले, सती प्रभा, सती प्रथा, यानी एक स्त्री जो कि विधवा हो गई है उसको उसी के साथ, उसके पति की लाश के साथ ही जला दिया जाता था। कितना बड़ा आप देखो कृत्य हो जाता कि जाने वाले की तो नियत थी, लेकिन उसकी स्त्री को भी उसके साथ जला दिया। कोई नहीं भी जाना चाहे तो भी उसको जबरदस्ती, और नहीं अगर कोई वो इसको अंगीकार करती थी तो उसके समाज में नीची दृष्टि में देखा जाता। ऐसी ऐसी प्रथाएं पहले प्रचलित थी। ये सब क्या है, जाने वाले की तो आयु निश्चित थी और आप उसके बाद ये सब क्या करें, मूढ़पना, मूढ़पना है, ये अज्ञानी जीवों के कार्य हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो जानता है कि वो जितनी आयु लेके आया है उतने ही समय में मरेगा, ना पूर्व ना पश्चात, ना उससे पहले मर सकता है ना बाद में मर सकता है। तथापि मूढ़ा, उसके बावजूद भी, जानते बूझते हुए भी, मूढ़ा मृते स्वजने विधाय शोकम परम, अपने स्वजन के, अपने रिश्तेदारों के मृत्यु हो जाने पर शोक प्रकट करते हैं। परम प्रचुर दुख भुजो भगंती, अत्यधिक दुख को प्राप्त होते हैं। तो ये वास्तविकता में क्या है, मूढ़ जनों के कार्य हैं। ये मूढ़ता ही, अज्ञान वश ये व्यक्ति करता है। किम नाम मरणम, आचार्य जी आगे कह रहे हैं कि ये मरण है क्या है, किस चीज का नाम है, कौन सी बला का नाम है, ये मरना है क्या। मरणम प्राण नाशा, मरण यानी प्राण का समाप्त हो जाना, प्राणों का समाप्त हो जाना, वो है उसे मरण कहते हैं। आयुरपि प्राण भेद एव, और आयु क्या है, आयु क्या है, तो प्राणों का प्राप्त करना क्या है, वो क्या है, वो आयु है। और आयु भी 10 प्राणों में एक प्राण क्या है, आयु है। 10 प्राणों के अंदर अभी आएगा इसमें खुलासा कि 10 प्रकार के प्राण हो रहे हैं, आगे वही बात आ रही है। तो उसमें आयु भी एक प्राण है। प्राणः मुख्यतः चत्वारः 10 च प्रोक्ता, तो प्राण कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 4 होते हैं और कुल मिला के भेद कर दें तो 10 प्राण होते हैं। बृहद द्रव्य संग्रह, तो बृहद द्रव्य संग्रह की गाथा 3 में क्या कहा, इंद्रिय बल आयु श्वासोच्छ्वास विधि प्राण चतुष्टयम वर्णितम। तो बृहद द्रव्य संग्रह में कहा है कि 4 प्राण होते हैं, तिक्का ले चदुपाना इंद्रिय बल माउवान पानोवा। तो तिक्काले, तीनों कालों में, चतुपाना 4 प्राण होते हैं। कौन कौन से, इंद्रिय बल, इंद्रिय यानी इंद्रियां, बल यानी बल, और आयु और श्वासोश्वास, आनपाना यानी श्वासोश्वास। 4 कौन कौन से, इंद्रियां, बल, आयु और श्वासोश्वास, ये 4 प्राण होते हैं। अब इनमें हम जब भेद कर लेते हैं, एतेषाम चतुर्नाम, तो इसको जो हम भेद कर लेते हैं, एतेषाम चतुर्नाम प्राणानेव विस्तार रूपेण 10 भेदा गोमट सारे प्रोक्ता। तो ये जो 4 प्राण हैं, इनको जब भेद प्रभेद इनके देखते हैं, विस्तार से देखते हैं, तो उसके 10 भेद हो जाते हैं। ऐसा गोमट सार जीव कांड में गाथा नंबर 130 में कहा है। वहां क्या कहा, पंचवी इंद्रिया पाणा मन वचिका सुतिन्नि बल पाणा आना पान पाणा आउग पाणे होती 10 पाणा। तो वहां पे क्या कहा, पंचवी इंद्रिय पाणा, तो जहां पे इंद्रियों की बात की वहां पे 1 गिना था, और इंद्रियां कितनी होती हैं, 5। तो 5 प्रकार की इंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां। मन वचन कायेषु तिन्नि बल पाणा, तो वहां पे क्या कहा, इंद्रिय बल, दूसरा क्या था, बल। तो बल कितने होते हैं, 3। कौन से, मन बल, वचन बल और काय बल। 5 और 3 कितने हो गए, 8। इसके बाद 2 और, आन पाना यानी श्वासोश्वास, और आयु यानी आयु। तो इस प्रकार से 5 और 3 8 और 1 9 और 1 10। तो मुख्य रूप से 4 प्राण, और डिटेल में गया तो 5 इंद्रियां, 3 बल, 1 आयु और 1 श्वासोश्वास, ऐसे 4 के 10 हो गए।
एकेन्द्रियेषु चत्वारः प्राणा एव। अब इसमें देख रहे हैं कि जो पंचेंद्रिय संघी पंचेंद्रिय है उसको तो 10 के 10 प्राण पाए जाते हैं, लेकिन जो एक इंद्रिय आदि हैं उनको 10 तो नहीं पाए जाते, लेकिन कम पाए जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे दो इंद्रिय, चाहे संघी या असंघी कोई भी हो, ये 4 मुख्य प्राण सभी को पाए जाते हैं, सभी को पाए जाते हैं। बस इतना है कि 5 इंद्रियों में उसको एक इंद्रिय को 1 पाई जाएगी, 2 इंद्रिय को 2, 3 इंद्रिय को 3, 4 और 5। संगी है तो उनको मन पाया जाएगा, असंगी को मन नहीं पाया जाएगा। कहीं आप देखेंगे कि बल के विषय में देखेंगे कि जो किसी को काय बल पाया जाएगा, किसी को वचन बल और काय बल दोनों पाए जाएंगे, और किसी को जो संगी है उसको मन वचन और काय तीनों बल पाए जाएंगे, और श्वास और आयु तो सभी को पाई जाएगी। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं आचार्य श्री, एक इंद्रियेषु चत्वारः प्राणा एव। तो एक इंद्रियों में 4 प्राण ही होते हैं। यतस्तत्र स्पर्शेतर चतुरिंद्रिय प्राणानाम तथा वचन मनोबल प्राणायोस्य अभाव। तो एक इंद्रिय में 4 ही प्राण होते हैं, क्योंकि उसमें मात्र स्पर्शन इंद्रिय तो होती है और अन्य रसना घ्राण आदि जो है ये 4 इंद्रियां नहीं होती। इसी प्रकार से वचन बल और मन बल नहीं होते, एकमात्र काय बल ही होता है। द्विइंद्रियेषु षट् प्राणा। 2 इंद्रिय में कितने प्राण होते हैं? 6 प्राण। 4 ये पहले वाले हैं ही हैं, और इसमें रसना इंद्रिय बढ़ गई और वहां पर वचन बल बढ़ गया। तो यत्र तत्र स्पर्श रस नेतर त्रिंद्रिय प्राणानाम तथा मनोबल प्राणस्य चा भावा। तो वहां पे क्या है, स्पर्शन और रसना को छोड़कर बाकी जो 3 इंद्रियां हैं, और मन बल और वचन बल को छोड़कर, यानी काय बल और वचन बल को छोड़कर मन बल का वहां पे अभाव है। तो 3 वो कम होगी और 1 मन बल, 4 कम हो गए। तो 10 में से 4 गए, कितने रह गए? 6 प्राण। त्रिइंद्रियेषु सप्त प्राणा यतस्तत स्पर्शन रसन घ्राणस्तरयो द्वयोरिंद्रियोर प्राणियो तथा मनोबल प्राणस्य च भावा। तीसरा जो है कौन सा है? 3 इंद्रिय। तो 3 इंद्रिय में 2 इंद्रियां कम हो गई, बाकी तो सब है ही है, मात्र लास्ट की जो 2 इंद्रियां हैं कौन कौन सी? चक्षु और कर्ण कम हो गई, और 1 मन बल कम हो गया। तो ये 3 कम हो गए, तो 7 प्राण हो गए। चतुरिंद्रियेषु अष्ट प्राणा यतस्तत कर्णेन्द्रिय प्राणस्य मनोबल प्राणस्य च भावा। तो 4 इंद्रिय में कर्ण इंद्रिय का और मन बल का ये 2 का कम हो गए, 8 प्राण हो गए। पंचेंद्रियेषु असंगी 9 प्राणा। असंगी पंचेंद्रिय में 9 प्राण होते हैं, क्योंकि 5 इंद्रियां होगी, मात्र मनोबल का वहां पे अभाव है। संगी पंचेंद्रियेषु 10 प्राणा भवन्ति। तो संगी पंचेंद्रियों में क्या है? 10 के 10 प्राण होते हैं। उक्तम प्राणानाम वियोग एव मृत्यु तस्मिन् काले इति तात्पर्यम्। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो प्राणों का, ये जो 10 प्राणों की यहाँ पे बात कही है, इन्हीं का वियोग क्या है? मृत्यु है। इन्हीं का वियोग मृत्यु है। जब तक ये 10 प्राण हैं तो व्यक्ति जीता है, और इनके वियोग हो जाने पर मृत्यु को प्राप्त होता है। इनका वियोग ही मृत्यु है, और मृत्यु कोई अलग चीज नहीं है। तो यही बात यहाँ पर आचार्य जी ने विस्तृत रूप से बताई कि एक व्यक्ति एक नियत आयु को लेके आ रहा है। आपको पता है कि वो उतनी ही श्वासों को लेके आया है, उतनी ही आयु को लेके आया है, उतनी ही अपने समय तक उसको जीवित रहना है, और उसके बाद नियम से उसे मृत्यु को प्राप्त होना है। ना तो एक क्षण घट सकता है, ना ही बढ़ सकता है। फिर भी व्यक्ति शोक को प्राप्त होकर असाता वेदनी कर्म का उदय करता है। तो हमें, चाहे वो हमारे स्वजन हो, परिजन हो, या कोई भी जीव हो, मृत्यु को एक सामान्य रूप से लेना चाहिए। किसी की भी मृत्यु को प्राप्त करके बल्कि यह विचार करना चाहिए कि हम भी उतनी ही श्वासों को लेके आए हैं, जितना समय हमें ये मिला है, ये जीवन काल हमें मिला है, इसमें हम अच्छा धर्म ध्यान कर लें, इस जीवन को सदुपयोग में लगा लें, धर्म ध्यान में लगा लें, तो हमारा ये जीवन पाना सार्थक और सफल हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य जी ने जो ये प्राणों के विषय में कहा कि ये जो आचार्य जी का इसमें शब्द आया था मरण संयमी, तो मरण का समय उपस्थित होने पर, इन 10 प्राणों का वियोग होने पर कोई भी उसे बचाने में सक्षम और समर्थ नहीं है। इसलिए हमें इस जीवन को अशाश्वत और अशरण मानकर निश्चित रूप से एकमात्र धर्म की और अपनी आत्मा की शरण लेनी चाहिए। और जितना जीवन काल हमें मिला है उतने में हमें धर्म में आगे बढ़ के और इस जीवन को सार्थक और सफल बनाना चाहिए। आप सभी भी अपने इस मानव जीवन को सार्थक और सफल बनाकर मृत्यु के समय को स्वयं आप समाधि मन को प्राप्त कर सकें और मृत्यु को ललकार सकें। आज तक हम लोग मृत्यु से हार मानते आए हैं, लेकिन आज एक ऐसा कार्य हम कर लें
कि मरण समाधि को हम प्राप्त कर सके और मृत्यु को ललकार सके, पराजित कर सके। इस भावना से जब लिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।